Today we will do this reading. This is a little bit confusing, but then once you are done with the confusions, it is not that difficult. You will realize. Okay. So this is also going to give you a learning curve. This has many type of questions. This reading has true, false, not given. This reading has multiple choice questions, and this reading also has matching sentence endings. Okay, so three types of questions are there: match the sentence endings, multiple choice, and true, false, not given. So you will learn from all these, right? Okay, so first set of questions is complete the following sentences with the correct ending. Now for this to be done correctly, you have to have in your mind what all options are there after you read the question. Okay, so like appointments with alternative practitioner, और ये वाली जो ऑप्शंस हैं जो इसकी एंडिंग्स हो सकती हैं, जस्ट रीड देम ऑल एंड ट्रांसलेट देम सो दैट व्हेन यू रीड द पैसेज आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाए दैट some such thing you have gone through and you will be able to answer. Okay, so should be easy to understand. इसकी क्या हिंदी होएगी? समझने में आसान हो, ठीक है? ought to improve by itself, अपने आप improve होना चाहिए, कोई भी चीज अपने आप improve होनी चाहिए. should not involve any mysticism. mysticism होता है जैसे अचंभा या कुछ mystic होता है which is not something. एक मिनट, I must tell you, mysticism नहीं होना चाहिए. mystic मैम भ्रम होना हो सकता है, भ्रम होना किसी चीज का. मिस्टिसिज्म is beyond normal human understanding. हम कहते हैं कोई और ही there is some other factor. mystic होता है, mystic person होता है a person who tries to become united with God through prayer and meditation, and so understand important things that are beyond normal human understanding. और mysticism होता है the belief that knowledge of God and of real truth can be found through prayer and meditation rather than through reason and senses. मतलब जिस चीज को reason या senses से नहीं explain कर सको वो mysticism होता है, ठीक है? mysticism is something which is not just in imagination, like कुछ mystic है. It is मैम मिस्ट्री वाला मतलब yes, beyond normal human understanding है कोई चीज, that is it. Okay, which is not through normal understanding, ये नहीं होगा, ठीक है? Okay, then ought to last a minimum length of time. ये कोई ऐसी चीज है जो मिनिमम एक कुछ समय के लिए लास्ट करनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नीड्स टू बी ट्रीटेड एट द राइट टाइम, उसको सही समय पे ट्रीट करना जरूरी है. शुड गिव मोर रिकॉग्निशन, इस चीज को ज्यादा रिकॉग्निशन देनी चाहिए. किसी को किसी चीज को ज्यादा रिकॉग्निशन देनी चाहिए, ठीक है? कैन अर्न हाई इनकम, ये हाई इनकम अर्न कर सकते हैं. कैन इज कर सकना. Do not rely on any specific treatment, ये किसी specific treatment पे rely नहीं करते हैं, ठीक है? Okay, now first question is appointment with alternative practitioner. We'll go to the passage. Want to devise a new form of alternative medicine. पहले तो मुझे आप ये बताओ, आपकी साथ साथ vocabulary building हो रही है. Alternative और alternate, ये दोनों words एक जैसे लगते हैं, आपको इनके मीनिंग्स पता है? ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब है? पर्यायी ऑप्शन किसी की जगह पे कुछ और, दैट इज ऑल्टरनेटिव. जैसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर. कन्वेंशनल इसका ऑपोजिट है. और ऑल्टरनेट होता है एक छोड़ के एक, ठीक है? ऑल्टरनेट, जैसे ऑन ऑल्टरनेट डेज आई गो फॉर ए वॉक, ठीक है? हाँ, तो आपको समझ आ गया ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव में जमीन आसमान का फर्क है मीनिंग में. यस मैम. सो अब हम पढ़ रहे हैं want to devise a new form of alternative medicine. No problem. Here's the recipe. Be warm, sympathetic, reassuring and enthusiastic. आपको कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डिवाइस करनी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है.
रेसिपी आपके सामने है, आपको वार्म होना है, सिंपैथेटिक होना है, दूसरे की प्रॉब्लम को सिंपैथी से सुनना है, रीअश्योरिंग होना है, उसको अश्योरेंस दिलानी है, ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। एंथुसियास्टिक मतलब आप में एक एंथुसियाज्म होना चाहिए उसको ठीक करने का, आप में एक जज्बा होना चाहिए, एंथुसियाज्म इज जज्बा, ठीक है। योर ट्रीटमेंट शुड इन्वॉल्व फिजिकल कंटैक्ट, आपका जो ट्रीटमेंट है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का, जो आपका ट्रीटमेंट है उससे फिजिकल कंटैक्ट होना है, आपको पेशेंट को टच करना है। And each session with your patient should last at least half an hour, और हर सेशन एट लीस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम दिया है, कम से कम इतना होना चाहिए। अब आपको कोई स्ट्राइक करा आंसर हो सकता है? यस मैम। यस मैम। शुड लास्ट अ मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम है ना एक। यस तो मैम, यस मैम। अपॉइंटमेंट्स विद अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर शुड, हाँ, मैम आउट डी। टू लास्ट अ मिनिमम। और टू लास्ट अ मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। यस मैम। ओके जुबेर, आपके पीछे थोड़ी डिस्टरबेंस है तो मैंने म्यूट करा आपको, ठीक है। शुड लास्ट ए मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम, ये ऑट टू लास्ट ए मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम। अगला पढ़ो, एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट। ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर का जो ट्रीटमेंट है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके alternative practitioner की जो description है, encourage your patients to take an active part in their treatment and understand how their disorders relate to the rest of their lives. Tell them that their own bodies possess the true power to heal. Make them pay you out of their own pockets. Describe your treatment in familiar words. Familiar words का क्या मतलब है? Easy to understand. हाँ, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया फेमिलियर वर्ड्स है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, उनको ऐसे समझाना है। सो ये होएगा एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट। ये हो जाएगा मैम। मैम जी पाओ जी। क्या नहीं, A ma'am, should be easy to understand. शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ए आएगा ना, इजी होना चाहिए। फेमिलियर वर्ड्स का क्या मतलब है, उनको समझ आ जाए फटाफट, ठीक है। An alternative practitioner who has faith in what he does, एक alternative practitioner जिसको जो वो कर रहा है उसमें faith हो। आगे देखते हैं, okay. Refer to the knowledge of an earlier age wisdom carelessly swept aside by the rise of the blind mechanistic science. Oh, come off it, you are saying something invented off the top of your head couldn't possibly work, could it? Well, yes, it could, and often well enough to earn you a living, a good living, if you are sufficiently convincing, or better still, really believe in your therapy, okay? Or better still, really believe in your therapy. तो ये क्या है, आप कर सकते हो ट्रीटमेंट अगर आप अपनी थेरेपी पे बिलीव करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, Ma'am, B. who has faith in what he does, अगर उसमें फेथ होगा इन व्हाट ही डज, तो वो बिलीव करता है, तो फिर क्या होगा, बी हो सकता है D. बी हो सकता है, डी, जी हो सकता है ना। देखो ठीक है सर, अर्निंग की तो बात ही नहीं होगी। हाँ, अर्निंग की तो बात ही नहीं करी। नो मैम। एक मिनट, उसको फेथ चाहिए ना मैम, हाँ, उसको खुद पे फेथ चाहिए ना, फेथ चाहिए तो क्या होगा, अब देखो इसको पढ़ो दोबारा। वो कह रहे हैं, पहले पैरे में कह रहे हैं कि ये refer to the knowledge, okay, or come of it, you are saying something invented off the top of your head couldn't possibly work. वो कह रहे कुछ आप make them pay out of your own pockets, पहले ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपनी जेब से आपको पे करेंगे, अगर आपको मतलब फेमिलियर वर्ड्स में आप उनको बताओगे, अब उनकी ले लोगे, ये सारी बातें हुई। फिर किसी ने लिखा कि ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वर्क करे, फिर एंड में वो लिखता है इट कुड, वेल यस इट कुड, अगले पैरे में शुरू करता है इट कुड वर्क and often well enough Yes, to ma'am. earn you a living. Yes, ma'am. यस मैम। तो earn you a living का क्या मतलब है, हाई इनकम। Income. हाई इनकम के बारे में बात हुई हुई है ना, इनकम की बात हुई हुई है, ठीक है। एंड रियली बिलीव इन योर थेरेपी, अगर आप बिलीव करते हो तो आपको अच्छी इनकम हो सकती है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर हु हैज फेथ इन व्हाट ही डज, अगर उसको अपने काम पे फेथ है, जो वो कर रहा है उस पे फेथ है, देन ही कैन अर्न हाई इनकम। समझ गए? अगला पढ़ो, द इलनेस ऑफ पेशेंट्स कन्विंस्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस, जो पेशेंट्स जो कन्विंस्ड है ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस के, जिनको भरोसा है ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस पे, उनकी जो इलनेस है। अब आगे पढ़ते हैं। Many illnesses get better on their own. So if you are lucky and administer your treatment at just the right time, you will get the credit, but that's only part of it. Some of the improvement really would be down to you, not necessarily because you would recommend ginseng rather than chamomile tea or use this crystal as opposed to that pressure point. Nothing so specific. Your healing power could be the outcome of a paradoxical force that conventional medicine recognizes but remains oddly ambivalent about the placebo effect. तो ये लिखे many illnesses get better on their own. ठीक है? तो जो है specific treatment. हाँ, तो इसका जो आंसर बनता है ought to improve by itself. यस मैम, बी हो जाएगा। बी आंसर बनता है इसका। देखो, The illness of patients convinced of alternative practice, जिनको आप कन्विंस कर लेते हो, इलनेस उनकी अपने आप ठीक हो जाती है, पर क्रेडिट आपको मिल जाता है। लिखा हुआ है ना वहाँ पे, यू गेट ई नहीं हो सकता इसमें, नीड टू बी ट्रीटेड एट द राइट टाइम। नीड टू बी ट्रीट, जो इलनेस है नीड्स टू बी ट्रीटेड नहीं, वो तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐसे बताया कि अगर राइट टाइम पे आप ट्रीट कर दोगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, पर बेसिकली उन्होंने क्या बताया है, मेनी इलनेसेस गेट बेटर ऑन देयर ओन। तो अगर आप स्पेसिफिक लिखा है ना मैम नीचे। हाँ, nothing so specific. ठीक है? That is it. So if you are lucky and administer your treatment just at the right time, need to do at the right time नहीं है question, कि उसको right time पे करना चाहिए, ये नहीं है। The thing is कि वो अपने आप ठीक हो जाती है, और अगर आपका जो आपने ट्रीटमेंट दिया वो right time पे बाई चांस दे दिया तो क्रेडिट आपको मिलेगा, क्रेडिट आपको मिलेगा, ठीक तो अपने आप होती है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक अपने आप। व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट मैम? PLACEB। प्लेसिबो इफेक्ट होता है जैसे ना, अगर प्लेसिबो होता है जो चीज एक्चुअल मेडिसिन नहीं है, पर वो आप देते हो पेशेंट की मेंटल सेटिस्फेक्शन के, और पेशेंट को उससे आराम भी आ जाता है। जब हम मेडिकल प्रैक्टिस करते थे ना, तो हमने एक बार एक वार्ड बॉय रखा अपना, तो पता क्या कहता है हमें, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। जो वार्ड बॉय रखा वो पता है क्या कहता है, जब हम शाम को घर आ रहे थे, हमें कहता है, डॉक्टर साहब मुझे ना थोड़े डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन दे दो, रात को अगर पेशेंट को पेन हुई तो मैं लगा दूंगा। अब डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन से पेशेंट ठीक थोड़ी हो सकता है, पर प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि उसको आराम आ जाता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि अब मुझे टीका मिल गया, अब मैं ठीक हूँ। समझ गए? इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। गॉट इट? यस मैम। हाँ, तो ये है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेनी इलनेसेस अपने आप ठीक हो जाती है, नीड टू की जरूरत नहीं है कि राइट टाइम पे दो, अगर आपने राइट टाइम पे दे दी तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब अगला है क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ पेशेंट्स रिसीविंग ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस। जो इम्प्रूवमेंट है पेशेंट की, जो ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस को रिसीव कर रहे हैं, उसमें the improvement, जो इनकी improvement है, it ये कौन सा क्वेश्चन है, which number of question is it? 31. Okay. Your healing power would be the outcome of a paradoxical force that conventional medicine recognizes but remains oddly ambivalent effect, the placebo, ambivalent about the placebo effect. ठीक है? तो जो उनकी so some of the improvement really would be down to you, not necessarily because you would recommend ginseng rather than chamomile tea, or use this crystal as opposed to that pressure point. Nothing so specific. तो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है जिसपे उनकी इम्प्रूवमेंट डिपेंड करती है। अब बताओ। H हो जाएगा। हाँ, do not rely on any specific treatment. H is the answer. ठीक है? कन्वेंशनल मेडिकल डॉक्टर्स, जो कन्वेंशनल मेडिकल डॉक्टर्स हैं, आगे देखो, यहाँ वहीं पे लिखा हुआ है कुछ,
conventional medicine recognize it but remains oddly ambivalent about. उनके उसके बारे में वो ambivalent है, उसको ना अच्छे से recognize करते हैं ना वो करते हैं. The placebo effect उसको उसके लिए ambivalent है. Okay, let me. F ma'am should give more recognition. Should give more recognition यही है, पर ambivalent का ambivalent. Ambivalent, having or showing both good and bad feelings about somebody, something. Ambivalent means neither ना उधर, उसके बारे में कोई neutral feeling. He has an ambivalent attitude. ठीक है? Ambivalent. She feels ambivalent, neither this way nor that way. तो वो इसको ढंग से recognize नहीं करते, इसको ज़्यादा recognition देनी चाहिए उनको. Basically ये है कि करते नहीं है, उनको recognition देनी चाहिए. Okay? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है. ये सारे हो गए. कन्वेंशनल मेडिकल डॉक्टर्स शुड गिव मोर रिकॉग्निशन, यहाँ पे एफ आना चाहिए. ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यूज. इन द 5th पैराग्राफ द राइटर यूजेस द एग्जांपल ऑफ एंगर एंड सैडनेस टू इलस्ट्रेट. 5वें पैराग्राफ में एंगर और सैडनेस क्यों इलस्ट्रेट करता है राइटर, उसका एग्जांपल क्यों देता है. A, people's feelings could affect their physical behavior. लोगों की जो feelings हैं उनके physical behavior को affect कर सकती हैं. वो कैसे react करते हैं, उनकी feelings उनके physical behavior को affect कर सकती हैं. Secondly, how placebo achieves its effect is yet to be understood. तो anger और sadness का example placebo कैसे achievement affect करता है अभी समझ नहीं आया, उसके लिए दिया है कि साइंटिस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ द माइंड इन्फ्लुएंसेस द बॉडी. साइंटिस्ट को ये नहीं समझ आ रही कि माइंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है बॉडी को. एंड रिसर्च ऑन द प्लेसिबो इफेक्ट इज वेरी लिमिटेड. तो प्लेसिबो इफेक्ट पे जो रिसर्च है वो बहुत लिमिटेड है अभी. नाउ लेट अस गो टू द पैराग्राफ 5. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ठीक है. ये at one level, it should come as no surprise that our state of mind can influence our physiology. Anger opens up the superficial blood vessels of the face. Sadness pumps the tear glands. अब यहाँ से कोई आंसर मिला आपको? Physical ma'am. हाँ, तो A आंसर है. A आंसर. ठीक है. ए कह रहा है कि एंगर और सैडनेस का क्या है दैट उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके फिजिकल बिहेवियर को इफेक्ट कर सकती हैं. अगर वो सैड हो तो ऐसे होगा, एंग्री हो तो ऐसे होगा. ठीक है. रिसर्च ऑन पेन कंट्रोल अट्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द अटेंशन बिकॉज जो पेन कंट्रोल की जो रिसर्च है उस पर बहुत ज्यादा अटेंशन जाती है. क्यों? वाई? अब पेन कंट्रोल की रिसर्च की बात करें, यहीं पे उसके आगे उसका आंसर है. Most of the scant research to date has focused on the control of pain. यही है ना, क्यों पेन कंट्रोल पे रिसर्च हो रही है? Because. क्यों? Because it's one of the commonest complaints and lends itself to experimental study. सबसे common complaint है और experimental study को lend करती है, इस पे ज्यादा ध्यान जाता है क्योंकि commonest complaint है. अब यहाँ पे देखो इसका डी होना चाहिए इसका आंसर. क्या होना चाहिए? D. D. Patients often experience pain and like to complain about it. तो उनकी commonest complaint है. D आंसर है. यस मैम, डी बोल रहा हूँ. ठीक है. हाँ, D आंसर है. Next is Fabrizio Benedetti's research on endorphins indicates that. अब endorphins पे Fabrizio Benedetti ने कोई रिसर्च करी है. वो रिसर्च क्या इंडिकेट करती है? Let us see. Fabrizio Benedetti कौन से पैरे में है? इसके बाद वाले इसी वाले इस अगले वाले नेक्स्ट लाइन Endorphins है. The recent work of Fabrizio Benedetti of the University of Turin showed that placebo effect can be abolished by a drug naloxone. अब देखते हैं वहां लिखा है कुछ. अबोलिश्ड मैम. Yes ma'am. Abolished है जैसे तो abolished है मतलब खत्म की जा सकती है. Neutralize. That is the synonym here. So C is the answer. यस मैम सी. ठीक है. C आंसर है इसका. Then we come to true false not given. First is there is enough information for scientists to fully understand the placebo effect. Scientists के पास enough information है placebo effect को अच्छे से study करने वाली. अच्छा, अब हम देखते हैं. यहाँ पे देखो. Still, no one knows how belief triggers endorphin release or why most people can't achieve placebo pain relief simply by willing it.
तो अभी किसी को पता नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है उनके पास काफी इंफॉर्मेशन है, तो क्या होना चाहिए आंसर? फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स, फॉल्स इज करेक्ट। False. ओके, फॉल्स इज करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है ना कि साइंटिस्ट के पास इनफ इंफॉर्मेशन है फॉर साइंटिस्ट टू फुली अंडरस्टैंड, और वहां कह रहे हैं कि उनके पास है ही नहीं इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अगली लाइन में भी दिया हुआ है, अगली लाइन भी पढ़ लो। दो साइंटिस्ट डोंट नो एग्जैक्टली हाउ प्लेसिबोज वर्क, यहाँ पे था आंसर, उनको अभी पता नहीं है, और वहां स्टेटमेंट कह रही है उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A London-based researcher discovered that red pills should be taken off the market. उसने डिस्कवर करा कि रेड पिल्स को मार्केट से हटा दो। इनकी बात तो हुई है, पर मार्केट से हटाओ नहीं हटाओ की बात नहीं हुई, तो नॉट गिवन है आंसर। ठीक है, पीपल्स, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। People's preference on brands would also have effect on their healing. लोगों का जो ब्रांड्स के लिए प्रेफरेंस है उसका भी उनकी हीलिंग पे इफेक्ट जाता है। 38th क्वेश्चन, लेट अस सी। यहाँ पे देखो ब्रांड्स की बात, इवन ब्रांडिंग कैन मेक अ डिफरेंस। इफ एस्प्रो एंड टैलेनॉल आर व्हाट यू टेक फॉर अ हेडेक, देयर केमिकली आइडेंटिकल जेनरिक इक्विवेलेंट्स में बी लेस इफेक्टिव। अब आपको अगर एस्प्रो और टाइलेनॉल से आपको फर्क पड़ रहा है, तो आपको कोई जेनरिक मेडिसिन मिल जाए, जैसे कैलपॉल है, पैरासिटामोल की कोई जेनरिक वेरिएंट है, वो उसका आपको इफेक्ट ही नहीं होगा, आपको लगेगा ब्रांड नहीं है तो ये कम असरदार है, तो ब्रांड्स का इफेक्ट हो सकता है। सो व्हाट शुड बी द आंसर? तो मैं आप इसका ट्रू होना ट्रू चाहिए। मैम। True, ma'am. बट इसमें मैम लेस की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि लेस नहीं है ना, ज्यादा नहीं दे रखा है ना, कि ज्यादा होगा या इफेक्ट कम होगा उसके बारे में नहीं बोल सकता। नहीं, वुड आल्सो हैव इफेक्ट दिया हुआ है ना, उसका इफेक्ट होगा, उन्होंने दिया है बड़ा क्लियर। ब्रांड की बात हो रही है, इवन ब्रांडिंग कैन मेक अ डिफरेंस, ब्रांड से भी डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, तो वो भी हीलिंग पे। ठीक है, फिर उसकी एग्जांपल दे दी आगे, तो ट्रू है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, medical doctors have a range of views on the newly introduced drug of chlorpromazine. medical doctors के range of views हैं जो क्लोरप्रोमाजोन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग है उसके बारे में। अब यहाँ 39th का जो आंसर है सेकंड लास्ट पैरे में है, यहाँ पे है decades ago when the major tranquilizer chlorpromazine was being introduced, a doctor in Kansas categorized his colleagues. उसने अपने colleague doctors को categorize करा according to whether they were keen on it, क्या वो उसके लिए कीन थे, दूसरा ओपनली स्केप्टिकल ऑफ इट्स बेनिफिट, दूसरे जो शक की निगाह से देखते थे, एंड तीसरे वो थे जो कहते थे दे के देखते हैं। ट्रू होगा। हाँ, तो वो ट्रू हो जाएगा, आपको पता चलेगा रेंज ऑफ व्यूज है। ठीक है, हाँ, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज alternative practitioners are seldom, एक मिनट, alternative practitioners seldom known for applying placebo effect. उनको कम ही प्लेसिबो इफेक्ट के लिए वो नोन है कि वो अप्लाई करते हैं। ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर प्लेसिबो इफेक्ट को ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। आंसर है यहाँ पे लिखा है, इट्स हार्डली सरप्राइजिंग देन दैट कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिशनर, कॉम्प्लीमेंट्री भी ऑल्टरनेटिव का सिनोनिम है, ई वाला कॉम्प्लीमेंट है, आर जनरली बेस्ट एट मोबिलाइजिंग द प्लेसिबो, वो बेस्ट होते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के लिए। ठीक है, चलो अभी वील गेट बैक फॉर द एसे डिस्कशन, राइट। आज मैंने स्पेस रिसर्च और फिर उसके आगे वाले जो भी होंगे, स्पेस रिसर्च मैंने लास्ट 2 एसेस थे पिछली बारी के जो मैंने फाइल शेयर करी थी, करे थे ना उसमें स्पेस रिसर्च के जो मैंने आपसे फाइल शेयर करी थी, उसके लास्ट 2 एसेस स्पेस रिसर्च के नहीं थे? हाँ, 2 लास्ट। यस मैम। वो वाले डिस्कस कराऊंगी और उसके बाद जो अगले नेक्स्ट है फिर वो शेयर कर दूंगी आपसे। ठीक है, so we'll get back in 10 minutes, is that okay? Okay, that's Yes. fine. चलो we'll get back in 10 minutes. ठीक है, Excuse me, ma'am. with the same link, with the same link. Excuse me, ma'am. Yes, Juhi. मैम, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप एक लिसनिंग करवा दें, मतलब प्रैक्टिस करवा दें, जस्ट 1 लिसनिंग ऑनलाइन क्लास में। कल कर लेते हैं लिसनिंग, रीडिंग कल नहीं करेंगे और लिसनिंग करा देंगे, ऐसे कर लेते हैं। लाइक मैम, आपने जो लिसनिंग दी थी मंडे को, जो लास्ट वीक की दी थी,
हाँ आंसर्स तो आ रहे हैं बट आंसर्स में कंफ्यूजन है, जैसे वन वर्ड कहा है लेकिन इन्होंने वहां पे मेरे वन वर्ड या वन नंबर कहा है, तो मेरे हिसाब से इन्होंने 2 नंबर्स दे दिए हैं। आंसर मेरा भी वही आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ये एग्जाम में मेरा रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज मुझे इसी में कंफ्यूजन हो रहा है कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस कुछ और दिए हैं, मैं कुछ और लिख रही हूँ, जो लेकिन मैंने आपको मॉक लिसनिंग दी थी ना मॉक टेस्ट के लिए, वो एग्जाम लिसनिंग है, वो स्टूडेंट्स ने रिप्रोड्यूस करी है, तो आंसर्स ऑथेंटिक नहीं है, जो आपने दिए वो ठीक है। ओके उसमें आप वो ऐसे, क्योंकि देखो स्टूडेंट जब आके रिप्रोड्यूस करता है और वो बनाते हैं उसकी लिसनिंग, हो सकता है ना आंसर्स आप जो कैम्ब्रिज की बुक से करोगे, जो उसमें आंसर्स है उनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और ये एग्जाम लिसनिंग है, और मेरे को एक्चुअली दिसंबर के बाद 3-4 बार स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि हमें तो ये लिसनिंग आई एग्जाम में, ये वाला आया, तो मैं इसलिए वो वाले मॉक टेस्ट में मेरे पास है 6-7 रीडिंग लिसनिंग, तो मैं वो दे देती हूँ मॉक टेस्ट वाली। हाँ बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगी अगर सेम रिपीट हो गया, पर उसके आंसर्स में अगर कुछ वेरिएशन है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैम आंसर्स एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा, लाइक जब भी आपको टाइम चलो मिले तो मैं कर देती हूँ, मैम ये बाहर क्यों नहीं निकालते, रेट क्या है तो ये देखो जो listening- कैम्ब्रिज की बुक्स में जितनी लिसनिंग है ना, वो पास्ट एग्जाम लिसनिंग है, वो बाहर निकाल दी उन्होंने, अब वो फिर अच्छा। पेपर में नहीं ना रिपीट करते। ओके मैम, दैट्स फाइन। हाँ ओके ठीक तो है। मैम अगर आप कैम्ब्रिज की उसमें मतलब ठीक स्कोर कर रहे हो, तो आई थिंक फिर उसमें एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैम एक दो लिसनिंग्स आप अगर प्रैक्टिस करा देंगे ना, उससे थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आंसर्स, थोड़ा सा इसमें मैपिंग होती है, तो मैप को जल्दी जल्दी समझना, उसी कौन से टाइम लिखना। अभी इस बार दिया था उसमें मैप था? हाँ मैम, इस बार तो जो ठीक आपने है, दिया था मैं एक मैप वही था। वाली लिसनिंग कल करवा दूंगी, और वो दोबारा शेयर कर देती हूँ ग्रुप्स में, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड न्यू। ओके, सो यस आई विल मैम। शेयर इट अगेन एंड we'll do it tomorrow, no problem। One more thing, ma'am, हाँ, IELTS मैम अपना क्लास कितने Cambridge टाइम में का है। होगी? अभी मैम 10 मिनट में जब बंद करूंगी उसके बाद। अच्छा मैम ओके मैम। कैम्ब्रिज का आईडीपी का सेम ही रहता है ना मैम? हाँ, कोई डिफरेंस? कैम्ब्रिज का और आईडीपी का सेम ही रहता है ना मैम लिसनिंग? कैम्ब्रिज का ही लिसनिंग होता है, आईडीपी तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करते हैं, पेपर सेटर्स कैम्ब्रिज है। ओके मैम मैम। आपकी जो Partners बुक हैं। थी उसी बुक हाँ। से जैसे मैंने कुछ प्रैक्टिस करी है, तो वो परफेक्टली फाइन है। मुझे जो हाँ, आपने ईमेल में जो आंसर्स भेजे थे और आपकी जो बुक थी, उससे वो एग्जैक्टली मैचिंग हो रही है सब। कंपाइलेशन है ना, ये एग्जाम लिसनिंग्स है। ओके ओके, वो कंपाइलेशन है बुक्स की, उनमें थोड़ी गलती होगी। जी जी। ठीक आप है, मैपिंग या जो भी है आप एक दो करवा दिएगा, थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए बस। कर लेंगे। चलो ओके, ठीक है, ओके गेट बैक इन 10 minutes। ओके मैम।